आपने पैसा भी इन्वेस्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम भी दिया, लेकिन उसके बाद भी यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस. सो हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली, आई एम अंडरलाइनिंग द वर्ड स्मार्टली, how to prepare smartly for these global examination so that you can have a global career. This is also we are taking up as an initiative here to provide you access to international education. GMAT है. Again ACT, American College Testing Scholastic Aptitude Test, जो 10+2 स्टूडेंट्स हैं या जो भी 10th में हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, बहुत से दे कीप ऑन गेटिंग इन टच विद मी हाउ टू गो टू फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री. जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, आप मैसूर यूनिवर्सिटी जाते हैं, आफ्टर 10+2 देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज. इफ यू वांट टू गो ओवरसीज, ACT, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग, सेट, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट. सिंपल सिलेबस है. इट इज ऑल अबाउट कोचिंग, इट इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस, सिंपल बुक, सिंपल करिकुलम, जो कि इंडिया के कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करता है. बट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू अप्लाई इन द ACT सेट, राइट नाउ इट्स द राइट टाइम. जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर में, ACT, SAT, दिस हेल्प्स यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर इफ यू वांट टू लुक फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन. द गवर्नमेंट इज गिविंग यू द फंडिंग आल्सो फॉर दैट. ये अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन इन रीसेंट ईयर्स टू रशिया. व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एग्जांपल? ग्लोबल एजुकेशन, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, the honorable prime minister has gone to this university in Russia. He has delivered a lecture there because there are many Indian students who are studying in this university in Russia. But how to participate in this? There's an MOU between the two university, between the two governments, Ministry of HRD and the relevant concerned ministry in Russia. So you can have global education. There are limited seats in Delhi. There are limited seats in India. How to increase your chances? There are many students, I am talking very practical, never feel like in any way that आपके कुछ scores कम हैं, आप में कोई competence कम है. I told you gradually what is happening, round the year assessment होगा, open book examination. What is the system today? At the end of the year, in a 3 hour you are evaluated. There has to be a round the year assessment. Gradually we are moving towards that direction. So don't think that you are not able to secure admission at a particular place. Maybe something better is there for you. So look global, and this is where we are helping you out. So University of Iceland, this is a very good example I am giving you. हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड गए थे, यूरोप में है, यूरोपियन यूनियन में है. दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बाहर की यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली इन द यूरोपियन यूनियन, यूरोप में देयर इज नो ट्यूशन फीस. जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में जो सबसे हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, ट्यूशन फीस का होता है. और यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड आई हैव टेकन अप एज एन एग्जांपल, देयर इज नो ट्यूशन फीस, एंड देन इन अ वेरी नॉमिनल 3 to 4 lakh rupees, less than 10 lakh rupees, you can have a very good education, a very good career. जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, you can take a विद्या लक्ष्मी लोन from the government of India. But look global, US में there is tuition fees, but in the European universities, many of the university doesn't have a tuition fees. And you will see जो इंडिया में एक प्रोफेशनल कोर्स की, PG कोर्स की कॉस्ट है, you will see the cost pursuing a PG course, a post graduate course, a professional course, a MBA course from a University of Iceland is either less or is either equivalent. So please look global. Okay, let us move further. Now Cambly is an example जहां पे आप लैंग्वेज स्किल्स को सीख कर अपने लिए घर बैठे बैठे एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स कर सकते हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क फ्रॉम होम, या कुछ वो फुल टाइम जॉब करते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं. Cambly is what? There are many housewives, homemakers, मेल फीमेल्स इन कनाडा, इन यूरोप, इन अमेरिका. उनको पता है बहुत से लोग उनकी कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं, उनको लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. यदि आपने IELTS का टेस्ट देना है, टोफल का टेस्ट देना है, आपके वीजा एप्लीकेशन में अच्छी लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए. तो इन कंट्रीज के जो घर पे लोग थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे हम जो फॉरेनर्स कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं उनको लैंग्वेज स्किल्स में हेल्प करें, उनको लोकल कल्चर के जानने के बारे में हेल्प करें, उनको इमिग्रेशन के प्रोसेस में हेल्प करें. उसके बेसिस पे दे प्रोवाइड यू 1 hour 2 hour ऑफ कोचिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लैंग्वेज टेस्ट. IELTS के लिए कैसे प्रिपेयर करें, आपको मॉक सिचुएशंस दी जाती हैं.
उसके लिए वो एक प्रोफेशनल नॉमिनल फीस लेते हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कैन क्रिएट अ सिमिलर एप्लीकेशन हियर। किसी को मलयालम सीखना है, किसी को तमिल सीखना है, किसी को संस्कृत सीखनी है, यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू योर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन अर्न एन इनकम। आपके ये लिए एक ये एडिशनल इनकम है। जैसे इंडिया से बहुत से लोग बाहर जाते हैं, ऐसी देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका ये जो एक सुपर फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ जापान गवर्नमेंट के साथ, ऐसे इंडिया के भी अंदर देयर आर मेनी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। जो वहां के लोग इंडिया में आते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, या जो एम्बेसीज में काम करते हैं, फॉरेन मिशंस में काम करते हैं, उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आता। यदि उनको लोकल लैंग्वेज की स्किल्स कोई सिखा दे, दिस इज वेयर योर अपॉर्चुनिटी कम्स इन। यू डोंट नो इंग्लिश, आपको हिंदी बड़ी अच्छी आती है, आप उन लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं। उनको हिंदी सीखना इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल यूएस एम्बेसी में देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम पंजाब हु वांट्स टू माइग्रेट टू यूएस और टू कनाडा। अब दे डोंट नो इंग्लिश, लेकिन यूएस वीजा सेक्शन में टुडे देयर इज अ फैसिलिटी। यदि आपने मराठी में बात करनी है, आपने बांग्ला में बात करनी है, यदि आपने हिंदी में बात करनी है, देयर आर लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स सिमिलरली इन द कैनेडियन कॉन्सुलेट। लेकिन वो स्किल्स आती कहां से है? वो स्किल आप ही के बीच में से आती है। लेकिन दैट इंफॉर्मेशन वी आर टेलिंग यू, सो यू कैन क्रिएट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ। नाउ दिस स्लाइड आई एम शोइंग यू, ये आप एक अपने स्लाइड पे देख रहे हैं, खोमचा वाला सड़क पे ही इज प्रिपेयरिंग सम स्नैक्स। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू, in today's time after this coronavirus there are many guidelines which have come, दस्ताने पहनने, और चलो हम कोरोना वायरस से भी पहले जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की गाइडलाइंस हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो एक हाइजीन, उन्होंने साफ सफाई रखी है, उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, कैप लगाई है, बेसिक हाइजीन। उससे क्या होता है, आपके कस्टमर इंक्रीज होते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु लुक फॉर हाइजीन। जैसे आप एक बार्बर शॉप पे जाते हैं, कुछ लोगों के लिए हाइजीन बड़ा मैटर करती है कि कितनी सफाई है। बार्बर तो हर टाइप के होते हैं, ऐसे ढाबे भी सब टाइप के होते हैं। यू गेट अ रोटी इन 5 स्टार होटल ऑल्सो, यू गेट अ रोटी इन अ ढाबा ऑल्सो। लेकिन सम पीपल प्रेफर टू गो टू अ 5 स्टार, सम पीपल, कोई लोग दिल्ली से आपका उत्तराखंड जा रहा है, कोई दिल्ली से आपका उत्तर प्रदेश जा रहा है, रोड साइड ढाबा। सो क्या सिचुएशन है वहां पे? अगर आपको अपनी क्लाइंटेल इंक्रीज करनी है, यू नीड टू शो हाइजीन। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम FSSAI कहते हैं, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। वहां से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो मुद्रा लोन ले सकते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कि मुझे हाइजीन आपको बिजनेस में हेल्प करेगी, लेकिन यदि आपने अपने छोटे मोटे स्ट्रीट बिजनेस को इंक्रीज करना है, आपका कोई जूस का शॉप है, आपका कोई स्नैक्स का शॉप है, चाय की दुकान है, छोटा मोटा आपका स्ट्रीट साइड कोई शॉप है, कैसे आप मेन स्ट्रीम के सिस्टम से, बहुत से लोग इंडिया में हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाते। व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट? दे डोंट हैव एनी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, उनके पास कोई रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पे बहुत से जो लोग आज सुन रहे हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप उन तक पहुंचा सकते हैं और उनसे इसका एक सर्विस चार्ज, नॉमिनल फीस ले सकते हैं। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे यू, क्योंकि आप उनकी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, आप उनकी लाइवलीहुड का सोर्स बढ़ा रहे हैं, आप उनकी लाइफ को फॉर्मलाइज कर रहे हैं। आज जो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख रहे हैं, जो भी उसकी एक स्टॉल पे इक्विपमेंट है, कढ़ाई है, जो भी उसके बर्तन है, शायद वो उनको ज्यादा हाइजीनिक वे में यूज कर सकता है, उनसे अच्छी इक्विपमेंट ले सकता है। लेकिन उसको मुद्रा स्कीम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है उसमें, 10,000 का 50,000 के छोटे छोटे लोन मिलते हैं, वो कैसे अप्लाई करें? somebody has to take that initiative। जूस का ये मैं स्लाइड आपको अगेन दिखाना चाह रहा हूँ। जूस की बड़ी सारी शॉप्स होती हैं। अभी हम बहुत ज्यादा, एक गर्म मौसम है, गर्मी का टाइम है, आप देखते होंगे जगह जगह देर आर गन्ने का जूस, बट इज देयर एनी हाइजीन इन दैट? शिकंजी आप देखते होंगे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज स्मॉल थिंग्स? हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी पीपल, आप देखिए जूस को, एक ये एंटरप्रेन्योर है, यूएस का एंटरप्रेन्योर है, ये इंडिया में भी कुछ कंपनीज आई हैं और उनका बहुत सेल भी हो रहा है। बड़े बड़े होटल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, देयर आर अ गुड रिक्वायरमेंट फॉर पीपल। हॉस्टल्स में दे प्रेफर क्वालिटी, और क्वालिटी एक दूसरे तरीके से भी अच्छा है। एक है कि आप शुरू में सस्ती चीज ले लें, फिर आप बीमार पड़ें, बीमार पड़ने के बाद आप जो इलाज पे खर्चा करें। दूसरी चीज, आप पहले बीमारी मत पड़िए। सो व्हाट यू टेक इनटू योर बॉडी डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर हेल्थ। एक आपका खर्चा ही नहीं, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है,
your study will get impacted, your focus will get impacted. So why not to take quality in yourself? So there are entrepreneurs who are required who can create good entrepreneur businesses around